kids, how are you all? I hope you all are doing good. So, once again, I'm back. I'm Ananya and I'm back with your English class. Alright, and today we shall begin with chapter number 6. What is the chapter? The chapter is Don't Tease the Disabled. Alright, children. So, before we begin, let's understand certain things. Children who are disabled कौन होते हैं? Simply, if we want to understand, disabled are the people who are unable to do certain work. ठीक है? Now, this disability can be for any reason, है ना? डिसेबल्ड हम उन लोगों को बोलते हैं जो लोग असमर्थ हैं किसी काम को करने के लिए, जो सक्षम नहीं है। अब ये असमर्थ होना किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि उनमें कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो, है ना, उनके किसी बॉडी पार्ट में कोई प्रॉब्लम है, या फिर उन्हें सोचने या समझने में दिक्कत आ रही है, ठीक है। बट फॉर एनी रीजन, ठीक है, if somebody is a bit different from us, we should not tease them. tease का मतलब होता है मजाक उड़ाना, किसी को नीचा दिखाना, किसी का हंसी उड़ाना। ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। इंस्टेड हमें क्या कोशिश करनी चाहिए? हमें हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। उनको क्या प्रॉब्लम है वो समझना चाहिए, एंड देन according to their problem we should behave with them. We should try to adjust with the people. Clear? So let's study a very interesting chapter in which we will learn that why we should not tease the disabled people. Okay, so let's get started. In this chapter, the writer described the mischiefs of some children who tease a disabled child in the bazaar. Read and know how the narrator protects the boy and teaches him swimming. So, this is a chapter where there must be a bazaar. You understand bazaar? It's a market. There must be a disabled boy, and certain children who always are naughty, or you can say who are mischievous, they basically tease this child. Alright? They make fun of him, they play pranks on him. And somehow the narrator, the protagonist of the story, saves that particular disabled child, and then he also teaches him swimming. ठीक है? So let's find out the story. Let's get started. I don't quite know why I found the particular town so heartless. Perhaps because of its crowded lanes, its very weary people. So the narrator says that the particular place where I am residing currently, that city or that town is quite weird and quite heartless. It seems that the people here are very heartless. जहाँ मैं रहता हूँ वो जगह बड़ी ही अजीब सी है। यहाँ के लोगों में संवेदना नहीं है, सहनशीलता नहीं है, लोगों के प्रति भावनाएं नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे इस शहर में वो प्यार नहीं है, वो चार्म नहीं है, एक दूसरे के प्रति जो एक सद्भावना रहती है वो नहीं है, वो मिसिंग है, ठीक है। शायद इसीलिए क्योंकि यहाँ जो लेन्स है, यहाँ की जो सड़कें हैं वो ओवर क्राउडेड है, यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, और शायद किसी के पास किसी के लिए वक्त ही नहीं है। One day I found the children of the bazaar tormenting a young boy. Tormenting means making fun of somebody, या किसी को परेशान करना, ठीक है। Tormenting means making fun of someone, और या फिर इसे और आसान शब्दों में कहें तो किसी को परेशान करना, ठीक है। About a dozen boys between the ages of 8 and 11 were teasing the boy who was making things worse for himself by facing the gang and shouting abuses at them. So, when these boys,
So how many total children were there? About a dozen. About a dozen means near about 11-12 boys. A dozen is equal to 12 है ना, एक दर्जन में 12 होते हैं, तो अबाउट डजन बोला है तो मतलब 11-12 लोग होंगे। और ये सब बॉयज कितने साल के हैं? 8 से 11 साल के बीच में, ठीक है। ये जो है ये उस लड़के को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे, और सिचुएशन और ज्यादा क्यों बिगड़ रही थी? क्योंकि वो जो लड़का था वो इन लोगों की परेशानी से परेशान होके उनको क्या कर रहा था? उनकी तरफ चिल्ला रहा था, उनको अब्यूज कर रहा था, ठीक है, उनको गंदे वर्ड्स बोल रहा था। The boy was of 12 or 13, judging by his face, but he had the height of an 8 or 9-year-old. Now this particular boy, ये जो बॉय था जिसको ये लोग परेशान कर रहे थे, चेहरे से अगर देखा जाए तो लग रहा था जैसे ये लड़का जो है मानो 13-14 साल का लड़का है, लेकिन उसकी हाइट बड़ी नहीं हुई थी। उसकी हाइट ऑलमोस्ट एक 7 या 8 साल के बच्चे की तरह थी। मीन्स ये जो बच्चा था ये काफी ज्यादा शॉर्ट हाइटेड था एज कंपेयर्ड टू द अदर किड्स ऑफ हिज एज। ऑलराइट, his legs were thick, short and broad. He had a small chest, but his arms were long, making him rather ape-like in his attitude. If we have the description, अगर हम अच्छे से description को पढ़े तो जो पैर थे उस बच्चे के वो तो काफी मोटे थे और थोड़ा सा बो धनुष की तरह मुड़े हुए थे, थोड़े बेंडेड थे, और जो उसका चेस्ट था वो काफी छोटा था, ठीक है, बॉडी के साइज के हिसाब से चेस्ट छोटा था, और हाथ जो थे वो काफी लंबे लंबे थे। क्लियर? और इस फिजिकल अपीयरेंस की वजह से, हाइट छोटी, पैर मोटा, हाथ लंबे, है ना, इस फिजिकल अपीयरेंस की वजह से उसको अचानक देख के थोड़ा सा अलग लग रहा था। वो सबसे ऐसा लग रहा था जैसे एप लाइक क्रिएचर, एप मतलब जैसे बंदरों की प्रजाति का हो, ऐसा लग रहा था, ठीक है। His forehead and cheeks were pitted with scars of smallpox, और उसके चेहरे पे, उसके फोरहेड और चेहरे पे चारों तरफ क्या थे? छोटे 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 स्मॉल पॉक्स के निशान थे। He was ugly by normal standards, and the gibberish he spoke did nothing to discourage his tormentors. Now, ugly means somebody who is not beautiful, and gibberish, beta, there are certain words like scars. Scars means nishan. Gibberish means a language which you easily cannot interpret, ठीक है, इस तरह की भाषा जो बहुत ज्यादा इजीली आप समझ नहीं सकते हो, आपको समझना है, ठीक है। सो उसका जो फेस था, उसका जो फिजिकल अपीयरेंस था वो काफी अगली था आम बाकी लोगों के हिसाब से। आमतौर पे बच्चे जो होते हैं काफी स्वीट होते हैं, या फिर यू कैन से अगर बहुत हैंडसम नहीं है देखने में, फिर भी देखने में ठीक ठाक होते हैं, लेकिन क्योंकि उसकी बॉडी के पार्ट्स ही थोड़े अजीब थे, देयर वाज नो बैलेंस बिटवीन देम, हाथ लंबे हैं, पैर मोटा है, कद छोटा है, तो इस वजह से थोड़ा जो है देखने में ही वो बच्चा अजीब लग रहा था। प्लस इन एडिशन टू दिस उसके चेहरे पे स्मॉल पॉक्स के इतने निशान थे कि जिसकी वजह से वो और ज्यादा कहीं ना कहीं दूसरों के कंपैरिजन में बदसूरत लग रहा था, यानी अगली लग रहा था। प्लस वो जिस भाषा में बात कर रहा था वो किसी को समझ नहीं आ रहा था, और लेकिन इस बात से किसी को भी फर्क नहीं पड़ रहा था। जो उसे परेशान कर रहे थे, जो उसे चिढ़ा रहे थे, वो वैसे ही उसको चिढ़ाते हुए चले गए, ठीक है। They threw mud and stones at him while keeping well out of his reach. Few can be more cruel than a gang of schoolboys in high spirits. Now, as you can see in the picture, can you see, children? This is the boy. He has so many scars on his face and hands because he has been suffering from smallpox. ठीक है, और ये जो बाकी बच्चे हैं वो उस पे क्या देखो, mud, stones, ये सब फेंक रहे हैं, ठीक है। तो is this a right thing to do? This is not a right thing to do at all. But these school boys, they were
enjoying this. ठीक है, उन्हें मजा आ रहा था उसको चिढ़ाने में, उसको परेशान करने में, और वो जितना रिएक्ट कर रहा था, वो जितना झुंझला जाता, जितना इरिटेट होता, जितना चिल्लाता, वो उसे और ज्यादा परेशान करता. ठीक है. I was an uneasy observer of the scene. I felt that I ought to do something to put a stop to it, but lacked the courage to interfere. Now the narrator says कि मैं वहीं पास खड़ा होकर ये सारा तमाशा देख रहा था, जो भी हो रहा था, और देखते हुए मुझे गुस्सा भी आ रहा था और मैं इसे रोकना भी चाह रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी, मैं अकेला हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि मैं आगे जाऊं और इस घटना को रोक सकूं या इसका प्रतिवाद करूं, इसके अगेंस्ट कुछ बोलूं. It was only when a stone struck the boy on the face, cutting open his cheek, that I lost my hesitation and ran amongst the boys, shouting at them and flouting those I could reach. अब फाइनली इन बॉयज के ग्रुप्स में से किसी ने उसकी तरफ जैसे स्टोन्स फेंक रहे थे वो उन्होंने फेंका और एक पत्थर उस लड़के के चेहरे पे लगा और इतनी तेज लगा कि चेहरे में एक डीप कट हो गया और वहां से खून बहने लगा. और ये जैसे ही नैरेटर ने देखा वो दौड़ते हुए चिल्लाते हुए उस बच्चे की ओर दौड़े. ठीक है. और साथ ही में उन्होंने जो भी वो जो लड़के थे जो हुलीगन टाइप का बिहेव कर रहे थे, बदमाशी कर रहे थे, उनमें से जितनों को भी पकड़ सकते थे उनको पकड़ लिया, उनको दबोच लिया. They scattered like defeated soldiers. अब जैसे ही नैरेटर आए, नैरेटर was a big man, okay? ये तो स्कूल बॉयज थे. जब उन्होंने देखा कि एक बड़ा आदमी, एक बड़ा व्यक्ति आकर बचाने की कोशिश कर रहा है या चिल्ला रहा है, वो सब डर गए. ऐसा क्यों? क्योंकि दुनिया में यही होता आया है कि लोग जो है कमजोर को सताते हैं, ताकतवर को कोई भी सताने की नहीं सोचता. ठीक है, उससे सब दूर भागते हैं. ये बेचारा बच्चा कमजोर था. ठीक है, वो अकेला इनसे लड़ नहीं पा रहा था, वो उसका इसीलिए आसानी से मजाक उड़ा रहे थे. लेकिन जब वो इंसान, वो व्यक्ति आए, तब वो सब डर के इधर उधर स्कैटर हो गए, इधर उधर हारे हुए सैनिकों की तरह भाग गए. I was surprised by my own daring and rather relieved when the boys did not return. अब वो किसी तरह छुड़ा के भाग गए सारे लड़के. एंड फाइनली नैरेटर खुद भी थोड़ा आश्चर्यचकित हो गए कि उन्होंने पहले क्यों ये कदम नहीं उठाया. ये जो अभी उन्होंने स्टेप लिया रोकने का, ये वो पहले भी कर सकते थे. और साथ ही वो खुश भी हुए कि वो जो लड़के थे जो इसको परेशान कर रहे थे वो वापस नहीं लौटे. They did not return. I took the frightened, angry boy by the hand and asked him where he lived. Now, children, there is a word here that is frightened. All right? Frightened means डरा हुआ, घबराया हुआ. Somebody who is quite nervous and cannot express his feeling, he is terrified. ठीक है, कोई डरा हुआ नर्वस इंसान. तो उन्होंने उसका हाथ लेते हुए, उसे संभालते हुए उसका एड्रेस पूछा और पूछा कि तुम कहाँ रहते हो. He drew away from me, but I held on his fat little fingers and I told him I would take him home. He mumbled something incoherent and pointed down a narrow lane. So finally क्या हुआ? जो नैरेटर थे उन्होंने पूछा कि तुम कहाँ रहते हो, तो वो थोड़ा डर गया, सकपका गया. सब उसका मजाक उड़ा रहे थे, किसी ने उसकी तरफ प्यार से कभी मदद का हाथ नहीं बढ़ाया, तो उसे डर लग गया कि कहीं ये भी मुझे कुछ करेंगे तो नहीं. उसने कोशिश की कि हाथ छुड़ा ले, लेकिन नैरेटर ने कस के उसकी उंगलियों को पकड़ लिया और फिर से प्यार से पूछा तुम कहाँ रहते हो. फाइनली द बॉय मम्बल्ड. Now, as you can see, there is a word mumbled. Mumbled का मतलब बेटा बड़बड़ाना. ठीक है. Incoherent means something which you cannot comprehend, यानी something which you cannot understand properly, जिसको पूरी तरह से ना समझा जा सके. So, बहुत बार पूछने के बाद फाइनली उस बच्चे ने
बड़बड़ाते हुए कुछ लाइंस, कुछ शब्द बोले, लेकिन वो नैरेटर को समझ नहीं आया। लेकिन साथ ही उस लड़के ने अपने हाथ के थ्रू एक रास्ते की तरफ इशारा कर दिया। ठीक है, आई लेट हिम अवे फ्रॉम द बाजार। सो फाइनली वो उसे लेके बाजार से बाहर उस लेन की तरफ चल पड़े। I said very little to the boy because it was obvious that he had some defect of speech. When he stopped outside a door set in high wall, I presumed that we had come to his house. So finally, जब नैरेटर उसके घर तक पहुंचे तो रास्ते में उन्होंने ज़्यादा बातचीत नहीं की, क्योंकि उसकी जो भाषा थी वो नैरेटर समझ नहीं पा रहे थे। नैरेटर को ये समझ आ गया था कि शायद इस बच्चे को बोलने में दिक्कत है, इसे नहीं पता कि सही ढंग से बात कैसे करते हैं। He has some defect in his speech and that is why whatever he is saying, we cannot comprehend that, we cannot understand that. Clear? The door was opened by a young woman. The boy immediately threw his arms around her and burst into tears. Finally, जब वो घर पहुंचा तो फाइनली दरवाज़ा खोला, एक यंग लड़की ने दरवाज़ा खोला और ये लड़का जैसे ही इस बच्चे ने उस औरत को देखा, वो एकदम से उसने अपनी बाहें फैला ली और उसको पकड़ के लिपट के फूट फूट कर रोने लगा। He started crying. I had not been prepared for the boy's mother. Not only did she look perfectly normal physically, but she was also strikingly beautiful. She must have been about 35. So this fellow, when he saw the lady, okay, the boy's mother, he was astonished. He was surprised. Why he was surprised? Because as compared to the boy, the mother was very, very beautiful. ठीक है, वो जो लड़का था वो थोड़ा अगली था, वो देखने में इतना सुंदर नहीं था, उसके बॉडी पार्ट्स, उसका चेहरा, उसके शरीर का आकार ठीक सा नहीं था, लेकिन उसकी जो मदर थी वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। लगभग 35 साल यानी 35 इयर्स की एज की मिडिल एज्ड वुमेन होंगी। ठीक है, और काफ़ी नॉर्मल भी लग रही थी। ऐसा नहीं लग रहा था उनको देख के कि उनको कुछ भी बीमारी है या कोई भी कमी है। She thanked me for bringing her son home and asked me into the house. The boy withdrew into a corner of the sitting room and sat on his haunches in gloomy silence, his bow legs looking even more grotesque in this posture. Now, grotesque means something which attracts somebody, but in a bad way. ठीक है, यानी कोई ऐसी चीज जो आपको आकर्षित कर रही है लेकिन वो देखने में सुंदर नहीं है, देखने में अजीब है, बड़ी ही विकृत है, इसीलिए आपको अट्रैक्ट कर रही है, इसीलिए आपका ध्यान उस तरफ केंद्रित हो रहा है। ऑलराइट, सो नाउ द लेडी, ऑफ कोर्स जब आपने मदद की है तो आपको थैंक यू तो बोलेंगे, तो द लेडी थैंक द नैरेटर एंड देन शी इनवाइटेड हिम इनसाइड हिज हाउस। बोला आप अंदर आके बैठिए, और फिर उनको बिठाते हुए वो भी वहाँ पे बैठी। ये जो लड़का था वो जैसे ही कमरे के अंदर गया वो सक पका के दुबक के एक कोने में बैठ गया, और जिस पोस्चर में वो बैठा उस पोस्चर की वजह से वो और भी ज्यादा अजीब लग रहा था, उसके पैर और ज्यादा अजीब लगने लगे। ऑलराइट, हिज मदर ऑफर्ड मी टी बट आई आस्क्ड फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर। तो ये जो लड़के की माँ थी उन्होंने उनसे चाय के लिए पूछा, लेकिन नैरेटर ने बोला कि सिर्फ पानी से ही काम हो जाएगा, यू कैन प्रोवाइड मी अ ग्लास ऑफ वाटर। She asked the boy to fetch it and he did so, thrusting the glass into my hands without looking me in the face. तो उन्होंने उस काम को किसे दिया? उन्होंने इमीडिएटली उस बॉय को बोला कि जाओ जाकर एक गिलास पानी लेके आओ, और वो लड़का ओबीडियंटली पानी लेके गया और सर झुकाते हुए उसने वो पानी का ग्लास जो है नैरेटर के हाथ में दे दिया। इस सब के दौरान उस लड़के ने एक भी शब्द नहीं बोला और ना ही नैरेटर की तरफ एक बार भी आंख उठा के देखा। सुरेश, he is my only son. She said, my husband is disappointed in him, but I love my son. Do you think he is very ugly? Now, as you can see,
They all are sitting in the living room and they are talking to each other. So finally, the lady started telling the narrator that he is Suresh, he is my child. My husband feels that he is very ugly and does not like him. है ना, मेरे जो पति हैं यानी सुरेश के पापा जो हैं वो उसको पसंद नहीं करते क्योंकि वो इसको बहुत बदसूरत मानते हैं, उसको बहुत अजीब मानते हैं, लेकिन मैं एज अ मदर अपने बच्चे को बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ. Ugly is just a word, I said, like beauty. They mean different things to different people. So now, as you can see, they are discussing with each other. So finally, the narrator said that beauty and ugly, these are two words which have two different meanings, है ना. दो लोगों के लिए अलग अलग मीनिंग हो सकता है. तो it's just about how we comprehend the words, हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं. ठीक है. अब जो बच्चा है जब उसने ये बातें सुनी तो उसको दुख हुआ, उसकी मम्मा जो बातें बोल रही है, तो वो चुपचाप क्या हो गया, मम्मा के पास आकर बैठ गया, घुटनों के बल बैठ के उसने अपना सर जो है मम्मी के घुटनों पे रख दिया और उसकी मम्मा भी उसको जो है सहलाने लगी और उसके चेहरे पे से आंसू पोंछने लगी. तब नैरेटर ने पूछा कि क्या आपने इसको ठीक से बोलना सिखाया है? कभी हैव यू ट्राइड teaching him how to speak properly or talk properly? He has been like this since childhood. The doctors can do nothing. So now the mother said that ये जब से पैदा हुआ है, बचपन से ही ये ऐसा है. कई डॉक्टरों को दिखाया, but they also could not do anything. वो भी कुछ नहीं कर पाए. While we were talking, the father came in and the boy slunk away to the kitchen. The man thanked me curtly for bringing the boy home and seemed at once to dismiss the whole matter from his mind. He seemed preoccupied with business matters. I got the impression that he had long since resigned himself to having a deformed son, and his early disappointment had changed to indifference. When I got to leave, his wife accompanied me to the front door. So, जब ये लोग सब बातें कर रहे थे, इतनी देर में the father of the boy came inside. ठीक है. And when the father of the boy came and he heard the entire incident, he also thanked courteously to the narrator for bringing the child back home. उन्होंने भी उनको थैंक यू किया, लेकिन कुछ ही देर में उन्होंने इस बात को जैसे अनदेखा कर दिया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है. उन्हें ऐसा लगा जैसे, मतलब उन्हें देख के ऐसा लग रहा था मानो ये तो होता ही रहता है, दिस इज अ रूटीन टास्क, कोई ज्यादा बहुत बड़ी बात नहीं हुई है कि उनका बेटा खो गया या उनके बेटे को किसी ने ऐसे परेशान किया. फादर के आते ही बच्चा भी क्या है, छुप के किचन में बैठ गया. ऑलराइट. वो उसके पापा के सामने ही नहीं आया और उसके फादर की बातों से या बिहेवियर से ये क्लियर था कि जैसे उसके फादर ने ये चीज मान ली थी कि उनका बेटा ऐसा ही रहेगा और उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता. राइट. वो उन्हें मतलब ही नहीं है कि उनका बेटा है नहीं है, कैसा है, क्या कर रहा है नहीं कर रहा है. He does not have any concern. He has only his concentration on his business. उन्हें अपने काम से फुर्सत नहीं है, वो उसी में अपना ध्यान लगाना चाहते हैं. उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता उनके बेटे के साथ क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा. So finally the narrator got up to leave and the wife came to bid him goodbye. ठीक है. नैरेटर जाने लगे तो जैसे हमारे घर से जब कोई मेहमान जाता है, हमको उनको बाहर सी ऑफ करने के लिए जाते हैं, तो the mother also did the same thing. Please do not mind if my husband is a little rude, she said. His business is not going too well. If you would like to come again, please do. Suresh does not meet many people who treat him like a normal person. तो जो मदर है उन्होंने रिक्वेस्ट करते हुए बोला कि मैं सुरेश के पापा के बिहेवियर से अगर आपको बुरा लगा हो या अगर आपको वो रूड लगे हो, उनकी तरफ से मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ. वो उनका मतलब ऐसा कुछ नहीं था रूड बिहेव करने का. दरअसल उनका जो बिजनेस है वो बहुत अच्छा नहीं जा रहा है. इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली एंड दैट इज व्हाई ही इज टेंस्ड एंड ही इज क्वाइट concerned for his business and over occupied with his problems, and so
he could not attend you properly, लेकिन आप चाहें तो दोबारा कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि सुरेश के लाइफ में बहुत ऐसे कम लोग हैं जो उसको एक नॉर्मल बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, जो उसका मजाक नहीं उड़ाते. I knew that I wanted to visit them again, more out of sympathy for the mother than out of pity for the boy. But I realized that she was not interested in me personally, except as a possible mentor for her son. About after a week, I went to the house again. So the narrator said, after observing the entire situation, he sensed the crucial situation. All right. And after sensing the importance, he finally made up his mind that he will visit them again. And he did so. After a week, he again went back to the same house to meet Suresh. वो दोबारा सुरेश से मिलने आए. Suresh's father was away on a business trip and I stayed there for lunch. The boy's mother made some delicious paratha stuffed with ground radish and served them with pickle and curd. So finally the day he visited, he was offered lunch this day. उनको जो है लंच ऑफर किया और लंच में क्या बनाया? स्टफ्ड पराठा, मूली के पराठे. ठीक है, ग्राउंड रेडिश मीन्स मूली के पराठों से और दही और अचार के साथ उनको खाने के लिए दिया. एंड द पराठास वर वेरी वेरी डिलीशियस. I was not far behind. If Suresh ate like an animal gobbling his food, I also ate some. तो सुरेश जो है खाना खाने का जो ढंग था वो भी बिल्कुल अलग था. ऐसा लग रहा था जैसे एनिमल्स क्या करते हैं, बड़े बड़े बाइट्स लेते हैं ना, सुरेश भी बिल्कुल वैसे ही खाने को खा रहा था. मतलब लग रहा था जैसे उसने किसी ने सिखाया ही नहीं कभी कि किस तरीके से छोटे छोटे बाइट्स करने चाहिए, आराम आराम से खाना चाहिए. उसको खाते हुए देख के थोड़ा अजीब ही लग रहा था. ऑलराइट. His mother encouraged him to overeat. He was morose and uncommunicative when he ate, but when I suggested that he come with me for a walk, he looked up eagerly. तो खाना खाते खाते उसकी मम्मा ने उसको encourage किया कि ओके खा लो और थोड़ा सा खा लो, और उसने मन भर के खाना खाया. फिर फाइनली खाना खाते वक्त उसने एक भी बात नहीं की. खाना फिनिश करने के बाद फाइनली द नैरेटर आस्क्ड, क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगे वॉक पे? तो सुरेश ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उसके बिहेवियर से ये क्लियर था कि ही वॉज ईगर, ही वॉज इंटरेस्टेड टू गो विद द नैरेटर. एट द सेम टाइम अ लुक ऑफ फियर पास्ड अक्रॉस हिज मदर्स फेस. जब वो बच्चा बहुत उत्सुक था कि हाँ मैं घूमने जाऊंगा, लेकिन इमीडिएटली जो मदर का चेहरा था उस पर चिंता के भाव, डर का एक भाव प्रकट हो गया. जैसे वो संकोच में है, वो समझ नहीं पा रही है भेजना चाहिए या नहीं चाहिए. शी वॉज क्वाइट एप्रीहेंसिव. Will it be all right? She asked. You have seen how other children treat him. That day he slipped out of the house without telling anyone. उसकी मम्मी ने फाइनली बताया कि क्या आप बिल्कुल श्योर हैं कि इसको लेके बाहर जाना चाहिए? इससे पहले उस दिन वो भाग गया था बिना किसी को बताया, और आपने देखा ही कि किस तरीके से सब लोग इसको बुली कर रहे थे, सब लोग इसको परेशान कर रहे थे. राइट. We won't go towards the bazaar, I said. I was thinking of a walk in the fields. उन्होंने क्या बोला? The narrator said कि मैं बाजार की तरफ जाने का नहीं सोच रहा हूँ, बल्कि मैं फील्ड्स यानी खेतों की तरफ एक वॉक लेके आने के लिए सोच रहा हूँ. Suresh thumped the table with his fist to show that he wanted to go. Finally, his mother consented, and the boy and I set off down the road. सुरेश नॉर्मली तो बात नहीं कर सकता था, तो उसने हाथ से टेबल पे मार के अपनी इच्छा को व्यक्त किया कि आई वॉन्ट टू गो, मुझे जाना है. ठीक है. और जब उसकी मम्मा ने देखा कि वो इतना ज्यादा इच्छुक है, ही इज सो ईगर टू गो, शी ऑल्सो गेव हर कंसेंट. उन्होंने भी अपनी परमिशन दे दी और नैरेटर और सुरेश जो है खेतों की तरफ घूमने निकल गए. He could not walk very fast because of his awkward legs, but this gave me a chance to point out to him anything that I thought might arouse his interest. Parrots squabbling in banyan tree or buffaloes wallowing in the muddy pond. So, जब वो लोग वॉक कर रहे थे तो सुरेश एज कम्पेयर टू बाकी चिल्ड्रन
बहुत धीरे धीरे चल रहा था। क्यों? क्योंकि उसके पैरों का शेप बहुत अजीब सा था, ठीक है। They were not in proper shape and it was a bit difficult for him to walk normally. Clear? So though he was walking, but the pace, the speed was very slow. And this gave an opportunity to the narrator. Narrator को ये एक मौका लगा क्योंकि slowly walk करते हुए वो सुरेश को हर एक छोटी छोटी चीजें दिखाते हुए जा रहे थे और वो सुरेश को बातें करते करते बहुत ज्यादा ऑब्जर्व कर रहे थे कि सुरेश को किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है, कौन सी चीज उसको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। We reached the dry river bed on the outskirts of the town and crossing it entered a field of yellow mustard flowers. The mustard stretched away towards the edge of a subtropical forest. Seeing trees in the distance, Suresh began to run towards them, shouting and clapping his hands. He had never been out of town before. So, finally, walk करते 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 धीरे धीरे वो लोग एक सूखे नदी को पार करके मस्टर्ड सीड्स यानी सरसों के खेत पे पहुंच गए और सरसों का खेत भी उन्होंने पार किया। तो वहां पे क्या था? वहां पे एक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट था जहां पे अलग अलग तरह के पेड़ लगे हुए थे। अब इतना हरा भरा और कलरफुल पेड़ पौधे फूल सब देख के सुरेश खुश हो गया। वो कभी अपने घर से बाहर नहीं निकला था, ज्यादा कहीं उसको आने जाने की परमिशन नहीं थी क्योंकि वो सबसे अलग था, तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे इस डर से उसे लोगों के साथ मिलने जुलने भी नहीं दिया जाता था। तो फर्स्ट टाइम ही वाज एक्सपीरियंसिंग द ब्यूटी ऑफ द नेचर। वो बाहर दौड़ा और इधर उधर चिल्लाने लगा, खुश होके पेड़ों की तरफ भागने लगा और क्लैप करने लगा खुशी के मारे। The courtyard of his house and occasionally the road to bazaar were all that he had seen of the world. तो सुरेश ने अपनी लाइफ में सिर्फ दो ही जगह ज्यादा देखी थी, या तो वो कभी कभी बाजार, ठीक है, मार्केट एरिया, या फिर अपने घर का जो आंगन था। इसके अलावा सुरेश ने कुछ भी नहीं देखा था। We found a small stream running through the forest. Stream means झरना, ठीक है बेटा। स्ट्रीम का मतलब होता है झरना। So we found a small stream running through the forest. जंगल के बीच में से एक झरना बह रहा था। And I took off my clothes and leaped into the cool water, inviting Suresh to join me. तो नैरेटर ने क्या किया? उन्होंने अपना जो कपड़े थे उसको साइड में रखा और जंप कर गए किसमें? वो जो झरना था उसमें, ताकि स्विम कर सकें। और उन्होंने सुरेश को भी बुलाया, तुम भी आ जाओ। He hesitated about taking off his clothes, but after watching me for a while, his eagerness to join me exposed his misshapen little body to the soft spring sunshine. So finally, initially सुरेश थोड़ा डर गया, उसके लिए तो ये बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था, उसने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं था, कभी ऐसा कुछ किया नहीं था। सोच में पड़ गया क्या करूं, कैसे करूं। पर जब उसने देखा कि नैरेटर अपने आप को बहुत ज्यादा पानी में एंजॉय कर रहा है तो उसको भी खेलने का मन किया पानी के साथ। तो उसने भी बिल्कुल नैरेटर की तरह ही फाइनली कपड़े उतार के वो भी पूल में उतर गया, ठीक है, जो झरना था उसमें उतर गया। He waded clumsily towards me. The water which came only to my knees reached up to his chest. अब सुरेश, because he was very short heighted, एक तो वो बच्चा था और ऊपर से दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में उसकी जो हाइट थी वो भी छोटी थी, तो जो पानी नैरेटर के पैर या घुटनों तक आ रहा था वो सुरेश के चेस्ट तक आ रहा था। क्लियर? तो ऑलमोस्ट सुरेश काफी ज्यादा पानी में सबमर्ज हो गया था। क्लियर? Come, I will teach you to swim, I said, and lifting him up from the waist, I held him afloat. He spluttered and thrashed around but stopped struggling when he found that he could stay afloat. तो नैरेटर ने क्या बोला कि इधर आओ, मैं तुम्हें स्विम करना सिखाता हूँ, तैरना सिखाता हूँ, तो तुम्हें मजा आएगा। इनिशियली अब जब हम फर्स्ट टाइम पानी में जाते हैं हमें स्विमिंग तो आती नहीं है, तो हमें डर लगता है, उसे भी डर लगा। इनिशियली वो समझ नहीं पाया, हाथ पैर चलाने लगा बहुत तेज तेज। फिर फाइनली जब उसने देखा कि एक सर्टेन मूवमेंट को करने से वो तैर रहा है, तो फाइनली ही स्टार्टेड ऑब्जर्विंग केयरफुली द नैरेटर एंड उसका डर भी जो है धीरे धीरे खत्म होने लगा। लेटर, सिटिंग ऑन द बैंक्स ऑफ द स्ट्रीम, he discovered a small turtle sitting over a hole in the ground in which
it had laid the eggs. He had never seen a turtle before and watched it in fascination while it drew its head into the shell and then thrust it out again with extreme circumspection. So आफ्टर द स्विमिंग सेशन फाइनली काफी देर पानी में बैठने के बाद वो लोग जो है रिवर बैंक पे यानी जो झरने का किनारा था वहां पे बैठ गए और आसपास देखने लगे और पास में ही सुरेश को एक टर्टल दिखा। वो टर्टल कभी अपना सर बाहर निकालता अपने शेल में से, कभी सर अंदर ले लेता। अब सुरेश ने कभी टर्टल ही नहीं देखा था, उसको तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा। फैसिनेटिंग मीन समथिंग विच इज एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग। उसको बहुत अच्छा लगा ये देख के, तो वो बहुत खुश हुआ। ठीक है, he must have felt that the turtle resembled him in some respect, with its squat legs, rounded back, and tendency to hide its heads from the world. अब कहीं ना कहीं सुरेश को टर्टल और अपने आप में थोड़ी सी समानता सी लगी। जैसे टर्टल बार बार निकल रहा है, फिर छुप जाता है, फिर निकल जाता है, फिर छुप जाता है, वैसे ही सुरेश भी अपने लेग्स की वजह से सबके साथ इंटरेक्ट करने की चाह तो रखता है, लेकिन क्योंकि लोग उसका मजाक उड़ा रहे तो वो एकदम से छुप जाता है, अपने आप को अलग कर लेता है। After that, I went to the boys' house twice a week and we nearly always visited the stream. Before long, Suresh was able to swim a short distance. Knowing how to swim, this was something the bazaar boys never learned. Gave him a certain confidence and made his life something more than a one-dimensional existence. Now, the narrator made it a routine that every week, twice a week, basically हर हफ्ते वो 2 बार सुरेश के घर जाते और सुरेश को लेके बाहर निकलते, अपने साथ घूमने निकलते ताकि उसका कॉन्फिडेंस बढ़े, वो लोगों से मिलना जुलना सीखे। और एक चीज वो हमेशा करते, वो स्ट्रीम पे जाते, क्योंकि सुरेश को स्विमिंग करना बहुत अच्छा लगा था, उसने उस दिन बहुत एंजॉय किया था। तो अब वो हर रोज सुरेश को वहां लेके जाते और धीरे धीरे करते करते सुरेश ने अच्छी तरह से स्विमिंग सीख ली। और स्विमिंग सीखने की वजह से सुरेश में कॉन्फिडेंस आ गया। ही वॉज नाउ वेरी मच कॉन्फिडेंट बिकॉज दिस इज समथिंग ही हैज नोन एंड समथिंग दैट मेक्स हिम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। वो जो बाजार में जो लड़के उसका मजाक उड़ा रहे थे, जो उसको बुली कर रहे थे, उन लोगों को स्विमिंग नहीं आती थी, लेकिन सुरेश को आती थी। तो सुरेश को कहीं ना कहीं इस वजह से एक कॉन्फिडेंस भी आया एंड इट फर्दर गेव अ मीनिंग टू हिज लाइफ। पहले वो सिर्फ घर में ही सिकुड़ के बैठ जाता था, छुप छुपा के, कभी अगर हिम्मत करके बाहर भी निकलता था, पीपल यूज्ड टू बुली हिम, दे यूज्ड टू टॉर्मेंट हिम। बट नाउ बिकॉज ही वाज स्लोली एंड ग्रेजुअली लर्निंग to enjoy the beauty of the life, he was learning certain skills, so he also started developing a certain kind of confidence and he started enjoying the life. So children, have you understood the chapter? I hope you have understood the chapter was quite interesting and it gives a very important lesson that we should always try to help others around us. Maybe somebody is not as beautiful as we are or somebody lacks confidence, but we should never ever try to demoralize somebody. We should always help them to achieve something in life. All right, we should not torture them, we should not make fun of them. Clear? Now let's proceed towards the exercises, children. So it's time to do first exercise, that is exercise number 8. Take the correct option. The children threw at the boy mud, stones, both or none. तो बच्चे mud and stones दोनों फेंक रहे थे, मिट्टी और पत्थर दोनों. So mud and stones we will be taking option number C, that is both. All right, we would be taking option number C, that is both. Second, his mother offered me tea, but I asked for a dash, cup of coffee, glass of water, glass of juice, glass of milk. तो मदर ने तो चाय ऑफर करी थी, बट नैरेटर ने पानी लिया, सो ग्लास ऑफ वाटर. थर्ड, सुरेश फादर वाज अवे ऑन अ टूर, पिलग्रिम सेंटर, बिजनेस ट्रिप और जर्नी. सो ही वेंट ऑन अ बिजनेस ट्रिप. फोर्थ वन, ऑथर वेंट टू द बॉयज हाउस अबाउट ट्वाइस अ वीक, डे, ईयर और मंथ. सो एवरी वीक है ना, हर हफ्ते, सो ट्वाइस अ वीक.
So children, we had done with the tick the correct options. So children, let's do the fill in the blanks. Let's complete these sentences using the suitable words. The first one, his legs were round, short and bold. I was an dash observer of the scene. I was an uneasy observer. Uneasy. Next one, third one. I dash that we had come to his house. I sensed. She must have been about this. Here we are describing the age of the mother. तो mother की age लगभग कैसी थी? 35 years. So she must be about 35. Clear? The boy dashed down at her feet. The boy squatted. Clear? So with this, we are done with the fill in the blanks also. Now let's proceed to the next exercise, that is answer the following questions. First question, what did the writer see in the bazaar? The writer saw that a boy was being bullied by some dozen of boys. Clear? एक बच्चे को 12-13 बच्चे जो हैं परेशान कर रहे हैं. He saw that this boy was not like other boys. He was a disabled boy and the other children were tormenting him and they were throwing muds and stones at him. Second, what was wrong with Suresh? Suresh had a different kind of body as compared to the other kids. He was short in height, his legs were round and bowed, his arms were long, his chest was small, he had a large face and entire face and arms were covered with the scars of smallpox. Clear? Third, how did Suresh react? So, when the children were throwing stones and mud on Suresh, Suresh started shouting loudly and he started running here and there to catch him. Alright. But since he did not know how to speak properly, that is why nobody could understand what he was saying. Fourth one, how did Suresh's father treat Suresh? Suresh's father treated Suresh in a very indifferent manner. He did not consider him as his child. He had accepted the fact that Suresh is a disabled child and he thought that nothing good can be done to Suresh. Alright. So he treated him quite badly. He did not try to associate with him or he did not try to understand Suresh. Alright. So we can, in short, we can say that he was a bit rude towards his own son. Fifth one, how did Suresh feel on seeing the trees? Suresh was delighted. He was fascinated to see the trees. He started shouting and clapping his hands and he ran towards the trees with a sense of thrill and excitement. Alright. So with this, we are done with your chapter. It was a beautiful chapter which tells us how to behave with others in the society and how to help others in the best possible way we can. Alright children, so with this we finish another chapter of your book. Stay tuned for a new video. I'll see you soon with something new and more interesting. So here I am signing off for today. Bye bye and take care.